Like to introduce our speaker, uh, who is Pooja Ma'am, HOD of FSA, and she is a technical trainer with experience in 17 years in depth of knowledge and expertise. And she is also certified by NASCOM, and uh, she was an in IES University also, and currently she's HOD in our FSA Academy. All, I think you can hear me. Warm welcome, everyone. Thanks for joining this webinar. This is going to be a webinar on how to become a software developer. Okay. So regarding this particular job role, we are going to today talk about each and every single thing that you need to require to become a software developer. And I could see a lot of names here, like there is Amit, Arpita, Hanuman Mandir. I don't know why the right name is not there. And Nishan, Surbhi, Vaibhavi, Varsha, Vyom. Okay. Can I people ask you to write your qualifications so that I'll get an idea how and what you have to exactly taking through this particular journey today? Can you please write in chat box? Just your qualification. Currently, you're doing BBA. That's very nice, Arpita. And I got the answer. Sound nahi aa raha hai. Am I audible to others? Varsha is not able to hear me. Yes. Okay. Thank you, Varsha. Thank you now. So, Arpita, what about other Nishant and Surbhi? I just want to ask you what exactly you do right now. You are in a graduation, you have completed your graduation, you are a 12th pass, you're a working professional or whatsoever, so that I can guide you properly how you can take through this particular career path. This is really going to be very exciting career path that you are going to choose. So for going into that Bachelor of Computer Science and Engineering in final year, Nishant, that's very good. Very nice. So now guys, I'm going to share my PPT. Okay. And we're going to first discuss what are the points that we will be going through in this particular 1 hour. Stay with me. Let me share my screen first to you all. I hope my screen is visible. Please write yes in the chat if you could see. Okay, nice. Now, first and foremost, what is the agenda of this particular webinar? See, we want to discuss and tell you about what career opportunities are there in the market in software developer. I'll be repeating myself in Hindi also. Just stick to this. सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आपको अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? What exactly are the skills that you require to become a software developer? अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें कौन से स्किल्स हैं जो आपको सीखने चाहिए? इसको सीखने के लिए आपको किस तरीके का एक्चुअली स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए? देन ऑल्सो फ्यूचर स्किल्स एकेडमी, ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है टू अचीव दैट? एंड एट द लास्ट, you all know artificial intelligence is taking over everywhere. Okay, AI tools we know. तो AI tools को यूज करके आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बन सकते हैं? These are 5 points I am going to discuss here in this webinar. Okay, फर्स्ट थिंग, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर क्यों बनना चाहिए? ये पर्टिकुलर करियर पाथ आपको क्यों लेना चाहिए? क्या इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं? यस, नाउ चेक दिस आउट. दिस इज द सर्वे. ओके, अभी भी अगर आप ये सर्च करते हैं जॉब मार्केट, जॉब्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपर इन इंडिया, यू कैन सी द नंबर 76,818 दिस मंथ इन February ओनली. इतने जॉब्स राइट नाउ अवेलेबल हैं. मैं आपको ये बताऊंगी कि इतने जॉब्स इस चीज में क्यों हैं. आप लिंक्डइन पे चेक करिए, लिंक्डइन पे भी आपको बताया है 80,000, अराउंड 80,000 जॉब्स इस पर्टिकुलर फील्ड में आज की डेट में है इन इंडिया. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अब्रॉड. बाहर तो इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है.
अब हम एक बात करते हैं कि एग्जैक्टली इतनी डिमांड इस पर्टिकुलर चीज की क्यों है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की डिमांड क्यों है, द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्यों? क्योंकि आप अपनी डेली लाइफ में जितनी भी चीजें, राइट फ्रॉम बिगनिंग, मॉर्निंग से देखिए, आप जितनी भी चीजें करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने फोन में डिजिटल थिंग्स जो जो भी यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अपने ऑफिस से रिलेटेड सारे काम जो है वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। आप अपना सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, वो भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। तो इतनी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप थ्रू सॉफ्टवेयर करते हैं, और इसीलिए डिमांड मार्केट में सॉफ्टवेयर की बहुत ज्यादा, इंजीनियर्स और डेवलपर्स जो ये सॉफ्टवेयर बना सके उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है, दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर और वेब डेवलपर्स। कौन कौन से हैं जो हम यूज करते हैं? हम Amazon यूज करते हैं, हम नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, हम जूम यूज करते हैं, हम एवरी डे व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, उबर यूज करते हैं, हम कितने भी तरीके से फूड ऑर्डर करना हो वो सारे एप्स यूज करते हैं। इतने सारे एप्स जो हम यूज करते हैं, उसको कौन बनाएगा? उसको बनाने के लिए ऐसे ही लोग चाहिए जो कि इस पर्टिकुलर फील्ड में स्किल्ड हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की मार्केट में जरूरत है। अच्छा, यहाँ तो हम सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ मैंने लिख रखा है वेब एप्लीकेशन, तो इसमें क्या कनेक्शन है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर की कोई जॉब मिलती है, इसका मतलब क्या है? आप क्या एग्जैक्टली आपसे कंपनी क्या करवाना चाहती है? आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के पर्टिकुलर जॉब रोल पर अपॉइंट हुए हैं किसी जॉब में, ओके, कंपनी में। तो आप क्या करेंगे? एक सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करता है? एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एग्जैक्टली वेब डेवलपमेंट ही करता है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर सबसे पहले जिस भी कंपनी के लिए कोई प्रोडक्ट बनाना हो, उस प्रोडक्ट के डिजाइन को डिजाइन करता है, यूआई, यूजर इंटरफेस, ठीक है। इसके साथ में उस पर्टिकुलर डिजाइन को फाइनलाइज करने के बाद उसकी कोडिंग करता है, उसके प्रोग्राम्स लिखता है, उसका प्रॉपर फ्रंट एंड बैक एंड उसकी वर्किंग बनाता है, बिल्ड करता है उसको, एग्जैक्टली बिल्ड करने के बाद उसको डिप्लॉय करता है, मतलब कहीं पर नेट पर उसको अपलोड करता है, जो जिससे कि वो सर्कुलेट हो सके, और उस सॉफ्टवेयर को बाद में मेंटेन करता है। ये सारे स्किल्स जिसको आते हैं वो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर, ओके। फॉर एग्जांपल, इको मार्ट मैंने लिख रखा है अपने स्लाइड पे। इको मार्ट मान लीजिए कि एक ऑनलाइन ऐसा एप्लीकेशन है, मार्केट प्लेस है, जैसे आपका ऑनडोर है, इस तरीके का, ठीक है, जिसमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और आपको बोला है कि आपको इस तरीके का एक प्रोडक्ट डिजाइन करना है, बनाना है, तो आप क्या क्या करेंगे? आप सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे कि क्लाइंट को क्या चाहिए। आप उसे प्रॉपर्ली उसका फ्रंट डिजाइन करेंगे कि आपके क्लाइंट को किस तरीके का फ्रंट चाहिए। फिर आप उसमें कोडिंग करेंगे, आप उसकी टेस्टिंग करेंगे कि हाँ, आपने जो कोड लिखा है वो सही है कि नहीं, हर एवरी कंडीशंस पे वर्क कर रहा है कि नहीं। देन उसको आप कहीं डिप्लॉय करेंगे नेट पे, और फिर आप उसको मेंटेन करेंगे, वॉट एवर इट इज। तो ये पर्टिकुलर जो भी एक प्रोसेस है, इससे एक प्रॉपर एप्लीकेशन कह लो या सॉफ्टवेयर कह लो, ये बनता है। अब इसमें भी डिफरेंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, इस तरीके के मार्केट में कितने एप्लीकेशंस एवरी टाइम बनते हैं कि इतने सारे जॉब्स की जरूरत पड़ती है, और क्यों, ये देखो साथ। अभी हमने इस बारे में बात की थी, जितने आइकन्स आपको दिख रहे हैं ये सारी चीजें हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। सुबह के अलार्म से लेके गूगल पे मीट करना, और साथ में मेल करना, एमएस ऑफिस को यूज करना, इसके अलावा हम बहुत सारे सोशल मीडिया पे या अपनी रील्स बनाते हैं, हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, एजुकेशन के लिए यूज करते हैं, सोशल मीडिया, एआई टूल्स, मार्केटिंग के लिए कितने सारे एप्स बनते हैं, कितनी सारी चीजें बनती हैं, जो कि सब इसी तरीके से वेबसाइट्स होते हैं। शॉपिंग ऑनलाइन, कितनी शॉपिंग हम ऑनलाइन करते हैं। बैंकिंग, स्पेशली बैंकिंग के लिए भी हम इस पे डिपेंडेंट हैं। जब तक आपके पास ऐप नहीं होगा, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, ये सारे ऐप आपके अगर मोबाइल में नहीं है तो आप पेमेंट नहीं कर सकते ना। फिर आपको कैश पे जाना पड़ेगा। कैशलेस बनने के लिए आपको एप्लीकेशन चाहिए, वो छोटा सा सॉफ्टवेयर चाहिए आपके मोबाइल में। देन टिकट बुकिंग, किसी भी तरीके की मूवी टिकट हो, रेलवे रिजर्वेशन हो, ये सारी चीजें भी हम उसी चीज से करते हैं। हमको फूड ऑर्डर करना हो तो भी हम कोई ना कोई ऐप को यूज करते हैं। हमें कैब बुकिंग करना हो तो भी हम, सिंपल मीनिंग इज, इस तरीके के एप्लीकेशंस अगर आप बना सकते हैं तो आपका करियर बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही ब्राइट है। अब बात ये आती है कि क्या ये
करियर, इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो मैंने नाम लिए, क्या वो बनाना इजी है? क्या कोई बना सकता है उसको? हाँ, anyone, if you are 12th pass student pursuing your graduation, if you are even in class 12th, okay, presently doing, then also you can do. Even you have completed your graduation, still finding it very difficult to get a proper, you can say, according to the skills that you have, according to that, if you are not paid well, then also आप कुछ नया सीख सकते हैं और इस तरीके से इस पर्टिकुलर डोमेन में अपना करियर देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। देखो, मैंने आपको बताया कि इस तरीके के एप्लीकेशन अगर कोई बना सकता है तो उसका करियर बहुत ब्राइट है। इस तरीके के एप्लीकेशंस की आप मार्केट में सोच नहीं सकते कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें लगी होती हैं और कितनी अच्छी सैलरीज लोग लेते हैं। इस पर्टिकुलर इस तरीके के एप्लीकेशन अगर आपको विथ फ्रेमवर्क जो कि मार्केट में अभी चल रहे हैं, वो जिनकी बात हम करने वाले हैं, ठीक है, वो फ्रेमवर्क अगर आपको काम करने आता है तो आपको 8 लाख टू 15 टू 18 लाख तक का पैकेज आप डिजर्व करते हैं इस पर्टिकुलर डेट के हिसाब से। ओके, तो क्या एक नॉर्मल वेब डेवलपर और एक नॉर्मल वेबसाइट डिजाइनर 8 लाख पर एनम की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक डिफरेंस है। देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक वेबसाइट बनाना बहुत आसान है, ओके, कोई भी बना सकता है, लेकिन एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको स्पेसिफिक स्किल्स की जरूरत होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक वेबसाइट जो होता है ना, वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक होता है मतलब मैंने कुछ इमेजेस ली, कुछ बैकग्राउंड सेट किया, कुछ बार्स बनाए और कुछ कंटेंट लिखा और वो पेज मेरा वेबसाइट है। उसमें कोई भी डायनामिक चेंज नहीं होगा। डायनामिक चेंज यानी अगर मैं एक छोटा सा वेबसाइट अभी 5 मिनट्स में आपको बनाकर भी दिखाऊंगी, तो वो वेबसाइट अगर आप लोगे तो उसमें कोई चीज चेंज नहीं होगी डायनामिकली, ओके। लेकिन आप सोचो, आपका फेसबुक, जैसे ही आप लॉगिन करते हो अपने फेसबुक पे, आपका नाम और अकाउंट ऊपर आ जाता है, व्हाट्सएप पे नाम और अकाउंट ऊपर आ जाता है। ये डायनामिक एप्लीकेशंस है, ये एप्लीकेशंस है। इनके इनमें आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपका डेटा है। फेसबुक पे सारी दुनिया का डेटा आपको नहीं दिखता। जब आप अपने अकाउंट में ओपन करते हैं तो डेटाबेस में जो आपकी पोस्ट है या जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सिर्फ उन्हीं का डेटा आपको दिखता है, सबका नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि ये डायनामिक एप्लीकेशन है, ये नॉर्मल वेबसाइट नहीं है जो सबको एक ही तरीके का व्यू देता है। तो हमें अगर एक अच्छी करियर चाहिए इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो हमको एक वेबसाइट नहीं बनाना सीखना। वो तो मैं आपको बताऊंगी 5 मिनट में, आप मेरे साथ बना लोगे अभी। फिर आपको सीखना है वेब एप्लीकेशन बना, इस तरीके के एप्लीकेशन। आप सोचो, आप जिस जगह पे हो अभी, कितनी डिमांड होगी एक वेब एप्लीकेशन की। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मार्केट में हो, आपके लोकेलिटी में भी मार्केट है, शॉप्स हैं, जितने भी शॉप्स हैं सभी की ये डिमांड नहीं होती है कि उनके पास एक छोटा सा एप्लीकेशन हो जिसमें वो अपना प्रोडक्ट दिखा सकें, वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच सके और उनको वहीं से ऑर्डर मिल सके। या ये कहना चाहिए कि हर एक छोटा बिजनेस वाला भी आज ये चाहता है कि उसकी एप्लीकेशन हो या उसका एक ऐसा डायनेमिक वेबसाइट हो कि जिससे वो अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा सके। जो कि हम जनरली क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल के, इंस्टाग्राम पे डाल के बिजनेस को कोशिश करते हैं। लेकिन क्यों नहीं सबके पास एक एप्लीकेशन, और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एप्लीकेशन बनवाना थोड़ा सा महंगा काम है, ओके। तो अगर समझ लो आपको ये चीज आती है, आपको एक छोटी सी किसी भी पर्टिकुलर शॉप का एक एप्लीकेशन बनाना आता है और आप बनाते हो, तो आप उनको 60 to 70 थाउजेंड रुपीज चार्ज कर सकते हो उसका, और वो भी आप फ्रीलांस कर सकते हो, आपको किसी कंपनी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी आपको ये बातें बहुत बड़ी लग रही होंगी कि इतनी बड़ी चीज मैं एज अ फ्रीलांसर बना सकता हूँ कि नहीं। मैं आपको दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली आपको क्या सीखना चाहिए और ये कैसे पॉसिबल होता है। ठीक है, स्टे विथ मी। तो ये होता है डिफरेंस आपके वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन पे। इसी तरीके से एक छोटी चीज और आती है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वेब एप्लीकेशन एंड मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो आपके सिस्टम पे चलते हैं, दोस्त जो कि आपके विंडोज पे चल रहे हैं, वो आपके क्या है, वो आपके वेब एप्लीकेशन है। लेकिन जो आपके एंड्रॉइड सेट पे चल रहे हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड हो रहे हैं, वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन है। तो क्या आप मोबाइल एप्लीकेशन डायरेक्टली सीख सकते हो? नहीं। थोड़ी सी चीज ये होती है कि आपको पहले जो है वो वेब एप्लीकेशन सीखने होते हैं और उन्हीं का एक आध फ्रेमवर्क, बस एक
एक चीज चेंज करनी है, एक फ्रेमवर्क चेंज किया आपने, और आप उसी नॉलेज को जो आपने गेन किया उसी से आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो। अब इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज यूज करना है उसकी बात हम थोड़ी से बाद में करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट फेज की चीज समझ में आ गई। इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज राइट यस इन चैट, आई जस्ट वांट टू नो इसमें आपका कोई डाउट है। पहली चीज कि मार्केट में आज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बहुत डिमांड है, और क्यों डिमांड है? ऑल बिकॉज इतनी एप्लीकेशंस, इतना बिजनेस के लिए ये जरूरी है, इसीलिए मार्केट में बहुत काम है, बहुत काम है। आपको किसी कंपनी की जरूरत नहीं है, यू कैन बिकम अ फ्रीलांसर। आप किसी को भी अप्रोच करके अपनी चीजें बना, और एक बार बनाकर आपने किसी को दे दिया, फिर सोचिए आपकी माउथ पब्लिसिटी कितनी होती है उस इंसान की जिसने इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया हुआ होता है, आपको काम की कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, पहली चीज आपको मैंने ये भी समझा दिया कि वेबसाइट की क्या होता है और वेब एप्लीकेशन। तो हम किसकी बात करेंगे? हम बड़े ब्रॉडर टर्म की बात करेंगे, हम वेब एप्लीकेशंस की बात करेंगे, वेबसाइट की बात नहीं करेंगे, वो तो हम क्विक 2 मिनट्स में बनाएंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशंस। अब सेकंड थिंग हम ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें वेब एप्लीकेशन कैसे होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक डिफरेंस समझाऊंगी। अभी देखो, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है और मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताने वाली हूँ, मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखाने वाली हूँ जो मेरा खुद का बनाया हुआ एप्लीकेशन है, ठीक है। और दैट इज ट्रू फॉर माय ओन ऑर्गेनाइजेशन। ओह, गिव मी अ सेकंड। यस, हियर देखो, ये मेरा पोर्टफोलियो, ये मैंने बनाया है, ठीक है। ये पोर्टफोलियो बनाने में मुझे हार्डली लगे होंगे 4 to 5 डेज, दैट्स इट। अब आप देखो कितना स्मूथ है और कितने अच्छी तरीके से चल रहा है, बिल्कुल सिंपल और बेसिक चीज है। उस सिंपल और बेसिक चीज में मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स मुझे आते हैं, मैंने जो भी काम किया है, मेरा एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। आप सोचो अगर मैंने किसी कंपनी को अपना रिज्यूम दिया, और या किसी कंपनी को मैंने इसका लिंक दिया, ये मैं अभी आपको भी दे सकती हूँ, यू कैन ऑल्सो सी, ये मैं आपको चार्ट में दे रही हूँ, यू कैन सी इट इन योर ओन सिस्टम, ठीक है। ऐसे अगर मैंने ये दिया तो आप सोचिए कि मुझे कितना पैकेज या कितना हाइक मिल सकता है मेरे पर्टिकुलर डोमेन में। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट दिखा रहा है मेरे स्किल्स कि मुझे क्या काम आता है। आप देखिए, अगर मैं इसको प्ले पे क्लिक करूं तो वट एवर इट इज, ये भी जो जहां भी ये सीरीज है, ये सारी चीजें उस पर लेकर जाएंगे। आई एम नॉट क्लिकिंग इट राइट नाउ बिकॉज आई हैव टू शो अदर थिंग्स। ओके, ये अब ये पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं है, ये एप्लीकेशन है। अब इसमें क्या डिफरेंस है आप ध्यान से देखना, मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। ये देखिए, दिस इज माय ओन कंपनी, जो SGSU आईसेक फ्यूचर स्किल्स एकेडमी। ओके, तो ये पर्टिकुलर साइट भी मैंने बनाया। आप इसकी स्मूथनेस देखो, ये मार्केट में डिमांड है राइट नाउ। मैंने इसमें कोर्सेज पे क्लिक करा, आई मूव टू कोर्सेज। और एक चीज और ध्यान देना, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, आप यहां देखना, इस चीज को देखना, ये पर्टिकुलर जो सर्कल है ना, ये मूव नहीं करेगा। अब मैं आपको इसके बाद बताऊंगी कि इसका क्या मीनिंग है। मैंने कोर्सेज को क्लिक किया, कोर्सेज आ गए। मैंने रोड मैप को क्लिक करा, मोन का रोड मैप आ गया। मैंने कॉन्टैक्ट को क्लिक किया, मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। मैंने होम किया, लेकिन यहाँ पर मेरा पेज रिफ्रेश नहीं हुआ एक बार भी। अगर आप किसी नॉर्मल वेबसाइट पे जाते हैं जो कि लेटेस्ट फ्रेमवर्क पे बना हुआ नहीं है, तो बनाना डिफिकल्ट होता है। नॉट ओनली दैट डिफिकल्ट होता है, इस तरीके की स्मूथनेस आप उसमें नहीं ला सकते। मैं आपको वो चीज अभी दिखाती हूँ। मैं आपको एक पुराना वेबसाइट दिखाती हूँ हमारा, ठीक है। आप देखना, आपको समझ में आएगा कि किस टेक्नोलॉजी की मार्केट में आज डिमांड है और आप क्या सीखना चाहिए। आप थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ द नेट स्पीड। आ गया? अब ध्यान से देखो, मैंने, आप सिर्फ इसको देखना, आप इस सर्कल को देखना। गॉट दैट? मैंने क्लिक किया प्रोग्राम्स, क्रॉस क्रॉस बटन आया, और इसके बाद अब ये लोड होगा। ये लोड होने में टाइम ले रहा है। क्या इतना टाइम हमारा ये वेबसाइट ले रहा था? नहीं। क्यों? अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, ये वेबसाइट जो लोड होने में टाइम नहीं ले रहा है, ये लेटेस्ट रिएक्ट फ्रेमवर्क पे बना हुआ है, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क। मार्केट में जितने पुराने वेबसाइट्स हैं कंपनीज के पास, उन्होंने एक और फ्रीलांसिंग का काम निकाला है। वो सिर्फ क्या करते हैं, वो किसी अच्छे से बंदे को हायर करते हैं, कॉन्टैक्ट जिसका ज्यादा हो उनके पास, लिंक्डइन पे जिसने 2 4 5 प्रोजेक्ट अच्छे बना के रखे हो रिएक्ट पे, और वो सिंपल एक ही काम करते हैं
कि यार ये वेबसाइट हमारा बना हुआ है, प्लीज इसको आप रिएक्ट में चेंज कर दो। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं चाहिए, बस जो भी फंक्शनैलिटीज है वो आप मुझे रिएक्ट में दे दो। कि इतना जो टाइम कंज्यूमिंग काम हो रहा है ना, वो मुझे नहीं चाहिए। तो सोचिए, आप इस चीज में आपको डिजाइन भी नहीं करना, आपको सिर्फ सेम कोडिंग लेना है और सेम वही इमेजेस, वही कंटेंट सीधे रिएक्ट में ट्रांसफॉर्म करना, और उसके भी आप पैसे चार्ज करेंगे और अच्छे पैसे चार्ज करेंगे। गॉट दैट? तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। अब हम बात करेंगे कि हम हमें सीखना क्या चाहिए अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंचना है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? ये समझ में आए तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख के बताएंगे, ठीक है? देखो ध्यान से, ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, आई थिंक 1 मिनट, ओके, ये जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब ये कंटेंट फिक्स नहीं है, यहाँ पे फिक्स नहीं है। देखो कैसे, मैं अभी यहाँ पे सर्टिफिकेट पे क्लिक करती हूँ, तो क्योंकि मेरे पास 2 ही सर्टिफिकेट के कोर्सेज हैं, ये 3 ही है, तो ये 3 दिखा रहा है। मैंने डिप्लोमा को क्लिक करा तो ये मुझे 5 कार्ड्स दिखा रहा है। मैंने ऑल कोर्सेज पे किया तो ये मुझे, ये डायनामिक है। ये जो डेटा है ना, ये जो कार्ड्स है ना, ये बने नहीं है। एक ही कार्ड है जो कि नया नया डेटा लेकर फटाफट अपने हिसाब से चेंजेस हो रहा है। ऐसा पता है कैसे होता है? आपके फेसबुक पे जैसे आपने फोटोज अपलोड करते हैं, वो फोटो जो अपलोड होती है वो डेटाबेस में जाती है, और जितनी फोटो अपलोड करते हैं उतनी वहीं की वहीं आती जाती है। उस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर बंदे को आप सर्च करते हैं तो उसके डेटाबेस में जितनी भी चीजें स्टोर होती हैं वो उस हिसाब से वहां से डेटाबेस में निकलती है, फटफट आपको दिख जाती हैं। पेजेस आपके फिक्स नहीं है, तो इतनी बड़ी फंक्शनैलिटी आप भी ला सकते हैं अपने पेजेस पे या अपने पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, ठीक है? अब सीधी बात करते हैं कि अगर हमको इस लेवल तक सीखना है तो ये क्या है। अब सॉफ्टवेयर डेवलपर और या फिर एप्लीकेशन डेवलपर बनने के लिए क्या सीखना होता है? मुझे आप चैट में लिख के बताइए किस किस को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट इन 3 चीजों के नाम पता है? सिर्फ नेम्स। क्या आपको इनके नाम पता है? क्या आप जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, HTML क्या होता है, CSS क्या होता है एटलीस्ट? यस, वेरी नाइस निशांत, वर्षा, एनीवन एल्स? ठीक है, तो HTML CSS आप जानते हैं। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। अगर आपको ये चीजें आती हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, आपको स्क्रैच से सीखना नहीं है। और अगर नहीं आती है तो भी वो बहुत बेसिक चीजें हैं, वो सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोर्स में इंक्लूड होता ही है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको एक रोड मैप दिखाऊंगी। अब ध्यान से देखो, एक एप्लीकेशन डेवलपर बनने के लिए आपको एटलीस्ट इन 4 में से, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस एंड डेवऑप्स में से एटलीस्ट 3 चीज आनी चाहिए। डेवऑप्स आपको नहीं आता, वो तो टूल है, ठीक है, लेकिन आपको अच्छा फ्रंट एंड बनाना, अच्छा बैक एंड बनाना और अच्छा डेटाबेस क्रिएट करना आना चाहिए। अब ये चीजें क्या है? देखो, आप पेटीएम यूज करते हो ना, तो जैसे ही आप अपना मोबाइल पे पेटीएम का एप्लीकेशन ओपन करते हो तो जो पहली चीज आपको दिखती है वो आपका फ्रंट एंड है, वो आपका इंटरफेस है, वो आपको दिख रहा है। इसके बाद आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो और जैसे ही आप पेमेंट के लिए क्लिक करते हो आपका पेमेंट हो जाता है। तो जो पेमेंट हो जाता है वो कैसे हो रहा है? वो डेटाबेस में बैंक के कहीं पे आपका अमाउंट जो है वहां से क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ये सारे काम हो रहे हैं। ये फ्रंट एंड नहीं कर सकता, ये बैक एंड करता है। तो कोई भी एप्लीकेशन में एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है, और साथ में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है या वो कहाँ होती है? डेटाबेस में होती है। तो आपको कितनी चीजें आनी चाहिए? आपको एक फ्रंट पेज बनाना आना चाहिए, उसके पीछे डेटाबेस में स्टोर करी हुई चीजों को लाना ले जाना या फिर रिक्वेस्ट भेजना लाना, ये सारे काम आपको आने चाहिए। तो बैकएंड की लैंग्वेज आनी चाहिए, फ्रंट एंड की लैंग्वेज आनी चाहिए और डेटाबेस आना चाहिए, ठीक है? तो फ्रंट एंड में कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए? लेट्स सी दैट कि एग्जैक्टली आपको फ्रंट एंड में चीजें कौन कौन सी आनी चाहिए। हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सबसे पहले आपको स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं ये सिखाने के लिए। इसके बाद हम सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सिखाते हैं, हम इसके बाद आपको 5 प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं और ये 5 प्रोजेक्ट्स हम आपको आपके लिंक्डइन पे पुश करवाते हैं, जिससे कि लोग जो कि रिक्रूटर्स हैं वो आपके काम को देख सके। हम आपको गिटहब सिखाते हैं जहां आपके प्रोजेक्ट्स रहते हैं। इसके बाद हम आपको लिंक्डइन पे वो सारे प्रोजेक्ट्स बनाकर उसका इंफॉर्मेशन कैसे शेयर करना है, ये सारी चीजें सिखाते हैं।
नॉट ओनली दैट, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट बेसिक में आता है, ठीक है, लेकिन इससे भी बहुत अच्छे वेबसाइट्स बनते हैं। ओके, इसके बाद हम आपको सिखाते हैं फ्रेमवर्क, वो फ्रेमवर्क जिसका आपने अभी एग्जाम्पल दिखाया, जो मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है वो इस फ्रेमवर्क में बनाया। कौन से फ्रेमवर्क को हम आपको सिखाते हैं? हम ये तीनों चीजें HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट जो है ना, इसी के फ्रेमवर्क सिखाते हैं। कौन सा? हम रिएक्ट सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्ट सीखने के बाद आपके पास एक बड़ा ऑप्शन खुल जाता है कि आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो, और अच्छे से रिएक्ट आ जाने के बाद आप रिएक्ट नेटिव कर सकते हो, तो रिएक्ट नेटिव में आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो। तो हम आपके लिए आगे फ्यूचर का भी एक डायरेक्शन खोल देते हैं इसके थ्रू, ठीक है। नॉट ओनली दैट, क्योंकि यहाँ तीन ऑप्शन हैं, फ्रेमवर्क आप तीन सीख सकते हो। आप चाहो तो एंगुलर सीख लो, चाहे रिएक्ट, चाहे व्यू। तो सबसे ज्यादा मार्केट में एंगुलर और रिएक्ट चलते हैं। तो रिएक्ट पे हमेशा मार्केट में डिमांड ज्यादा क्यों है? क्योंकि रिएक्ट ने अपना एंड्रॉइड का भी फ्रेमवर्क निकाल दिया है, दैट इज रिएक्ट नेटिव। तो इसीलिए जिसको रिएक्ट आता है उसके लिए बड़ी प्लस पॉइंट हो जाता है, उसे कम चीजें सीखनी पड़ती है और फटाफट उसका काम हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम रिएक्ट सीखते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक कर लिया, इसके बाद एक छोटी सी चीज आती है, दैट इज स्टाइलिंग। अच्छा, हमने सॉरी, हमने बेसिक में जो स्टाइलिंग सीखी वो है CSS, ठीक है, लेकिन CSS सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्विक बनाना चाहते हैं चीजों को। हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बहुत सारी यहाँ क्लास में एक टारगेट करो, एक एक कंपोनेंट को स्टाइल देते रहो, नहीं नहीं। रेडीमेड कंपोनेंट बने हुए कैसे उठाने हैं मार्केट से, और उठाने के बाद उसे कैसे लगाना है, और कैसे अपना वेबसाइट जल्दी से क्विकली एप्लीकेशन रेडी करना है, उसके लिए हम आपको सिखाते हैं बूटस्ट्रैप, टेलविंड और मटेरियल यूआई। तो रिएक्ट के साथ बहुत अच्छा कौन सा जाता है? मटेरियल यूआई एंड टेलविंड। अगर आपको टेलविंड आ गया तो भी आपने बस बात खत्म। इन तीनों में से आप एक भी सीख लोगे तो भी आपका काम हो जाता है। बूटस्ट्रैप बहुत थोड़ा बेसिक है, टेलविंड और बेटर है, ठीक है, यूटिलिटी फर्स्ट वाली चीजें पहले आपको देता है। मटेरियल यूआई में बहुत सारा मटेरियल बना हुआ, आपको पता ही नहीं है कि इतनी सारी चीजें हैं मार्केट में ऑलरेडी जो बनी रखी होती हैं। मटेरियल यूआई आपको सब प्रोवाइड करता है, बस कॉपी पेस्ट करो, अपना काम करो, दैट्स इट। टेलविंड के साथ भी ऐसा ही है, बहुत सारे कंपोनेंट्स बने। मैं आपको अभी टेलविंड को यूज करके चैट जीपीटी से 5 मिनट्स में पूरा वेबसाइट बना के दिखाऊंगी, आपको बस इस पे स्टे करना है, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो यहां तक अगर आपने सीख लिया तो आप एक जॉब रोल के लिए रेडी हो गए। कौन सा जॉब रोल है वो जॉब रोल है आपका फ्रंट एंड। आप फ्रंट एंड में मास्टर हो गए, आपको रिएक्ट आता है, आपको अच्छा स्टाइलिंग करना आता है, आपको बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो नॉलेज है, वी कॉल इट अ नॉलेज ओनली, वो भी आ गया। अब बात है आप इसको एप्लीकेशन लेवल पर कैसे ले जाएंगे, क्या आप इसको बैकएंड दे सकते हैं? बहुत आसान होता है। बैकएंड में एक्चुअली जो होता है वो आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, मैंने इसमें 3 मेंशन किए पर 4 ऑप्शंस होते हैं। एक थोड़ा सा पुराना PHP पर बहुत अच्छा रिलायबल। दूसरा, आप जावा सीख सकते हैं बैकएंड लगाने के लिए, पाइथन सीख सकते हैं, नोड सीख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ्रंट एंड सीखने के बाद आप स्टक हो गए कि मुझको पाइथन आती थी यार, पाइथन से ही हो जाता तो अच्छा होता, मुझे नई लैंग्वेज नहीं सीखनी, मुझे जावा में इंटरेस्ट नहीं है। तो ठीक है, आप मत सीखिए जावा, आप पाइथन में फ्लास्क सीख लीजिए और आप अपना बैकएंड का काम खत्म कर लीजिए उससे। अगर वो नहीं आता आपको तो आप जावा ले लीजिए। जावा से स्प्रिंग बूट और इस तरीके के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि बहुत काम के होते हैं, बहुत काम के होते हैं। मार्केट में इनकी डिमांड थोड़ी हायर लेवल पे, लेकिन हाँ, उसका नॉलेज गेन करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, फिर आता है आपका नोड, जो मैं एग्जैक्टली सिखाना चाहती हूँ। वो सबसे क्विक तरीका है और उसको हम कहते हैं मर्न प्रोजेक्ट्स। ध्यान से देखिए ये चीज, मर्न प्रोजेक्ट। मन प्रोजेक्ट क्या होते हैं? ये देखो, ये क्विक तरीका होता है फुल स्टैक डेवलपर बनने का। अब फुल स्टैक डेवलपर कौन होता है? वो सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसको फ्रंट एंड भी आता है, जिसको बैक एंड भी आता है और जिसको डेटाबेस लगाना भी आता है। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में वो तीनों काम हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से। सॉरी, यहाँ पे पावर कट हो गया, डोंट वरी, ओके, बट मैं दिख रही हूँ आपको। तो मोंगोडीबी, तो अगर आप मर्न सीखते हो ना तो बस एक चीज आती है कि डेटाबेस में आप मोंगोडीबी सीखते हो और रिएक्ट तो आपने सीख ही लिया है, साथ में आप एक्सप्रेस JS सीखते हो और थोड़ा सा नोड सीखते हो। इन तीनों को कंबाइन करके आप एक बहुत अच्छा मर्न का प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो ये जो प्रोजेक्ट आपको सामने दिख रहा है ना, ये एग्जाम्पल ही मर्न का है। मैंने इसमें MongoDB का डेटाबेस यूज करा है, Express.js यूज करा है फॉर माय APIs, React.js यूज करा है मेरे फ्रंट एंड के लिए, और मैंने इसमें Node.js यूज करा है।
अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर आप मॉन प्रोजेक्ट सीखते हो, ये वाला जो मैंने सामने आपके बनाया है, तो आपको पहले से क्या आना चाहिए? क्या ये अलग-अलग लैंग्वेजेस है? नहीं, ये जावास्क्रिप्ट है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, तो ये तो फिर आपके लिए और आसान हो गया। आपने थर्ड लैंग्वेज सीखी ही जावास्क्रिप्ट, उसके बाद आपका एक्सप्रेस भी जावास्क्रिप्ट ही है एक्चुअली। एक्सप्रेस.js है इसका पूरा नाम, react.js है इसका नाम, node.js है। क्यों? क्योंकि ये सब जावास्क्रिप्ट के आगे के फ्रेमवर्क्स हैं। तो वो नॉलेज आपका यहाँ पे भी काम हो गया, और जो एप्लीकेशन सामने दिख रही है, इस तरीके की एप्लीकेशन आप बना और सीख सकते हो इससे। गॉट दैट? अब बात आती है कि हम एग्जैक्टली आपको क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। फिर इसके बाद हम चैट जीपीटी से मैं आपको एक सैंपल दिखाऊंगी। चैट जीपीटी से आप अपने घर पे बना के देखिएगा कितना आसान होता है एक वेबसाइट बनाना चैट जीपीटी से। ओके, क्योंकि मैं अपने सारे कोर्सेस में एआई टूल्स को यूज करती हूँ। मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क सीखना है हमको। तो देखिए, ये पर्टिकुलर है जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसी पर्टिकुलर क्रिएटिव को देख के आपने ये वेबिनार अभी ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कोर्स में हम आपको मॉन प्रोजेक्ट ही सिखाते हैं। मतलब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे, आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनेंगे विद इन 3 मंथ्स। ओके, और कौन सी टेक्नोलॉजी को आप सीखेंगे? आप इस टेक्नोलॉजी को ही सीखेंगे, दैट इज मॉन टेक्नोलॉजी। ये जो प्रोजेक्ट मैं आपको सामने दिखा रही हूं, यही प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। देखिए कितना स्मूथ चल रहा है, और मैं आपको बता रही हूँ, ये गारंटी है कि आप सीखने के बाद हार्डली अगर लेंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो 15 दिन लेंगे, दैट्स इट, नॉट मोर देन 15 डेज। इससे ज्यादा नहीं लगेगा आपको कभी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। तो मैंने आपको टेक्नोलॉजी बता दी। एक छोटी सी चीज मैं आपको और दिखाऊंगी, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या कोर्स, इस कोर्स में हम एग्जैक्टली जो आपको स्किल सिखाने वाले हैं वो कोर्स है। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसी पर्टिकुलर कोर्स की, जिसके बारे में बात करने के लिए हम यहाँ ज्वाइन हुए। ठीक है, वो है इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट में बेसिक। जैसे मैंने आपको बताया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट सिखाएंगे हम। इसके बाद हम आपको MongoDB सिखाएंगे, हम आपको Node.js सिखाएंगे, हम आपको Express.js सिखाएंगे, हम आपको React.js सिखाएंगे। इसके बाद फिर आप उसकी तरीके से फुल स्टैक एप्लीकेशंस बना सकते हो। इसके सेकेंड स्टेज पे, जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट में ऑथेंटिकेशन नहीं यूज किया, ऑथेंटिक यूजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं एनीबडी कैन सी, आप वो भी सीखोगे मेरे साथ जब आप बनाओगे। फिर हम डिप्लॉयमेंट सिखाएंगे, होस्टिंग सिखाएंगे। जैसे कि मैंने आपको लिंक शेयर किया और आपको मिल गया, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप से कर सकते हैं। सिंपल, मतलब ट्रस्ट मी, यू ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है, दैट्स इट, आपका प्रोजेक्ट अपलोड हो जाता है इतने से काम में। तो ये चीज आप मेरे साथ सीख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा सैंपल दिखा रही हूँ। हर चीज में आपने देखा होगा एआई टूल्स। एआई टूल्स हर पर्टिकुलर चीज में आज मार्केट में बोला जाता है कि स्मार्ट वर्क करो, ऑफिस वर्क जितना भी करो वो एआई टूल्स यूज करो। तो MS ऑफिस भी पूरा एआई टूल आपको कैसे यूज करना है इसके बारे में है। तो चलो भाई, वेबसाइट भी बना लेते हैं ना अपन एआई टूल से। ठीक है, चलो अब आप देखना, कौन कौन रेडी है देखने के लिए कि 5 मिनट्स में वेबसाइट कैसे बनेगा चैट जीपीटी से? राइट इन योर चैट इफ यू आर एक्साइटेड टू सी दिस। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस, वेरी गुड। अब देखिए आप, मैंने क्या किया, अभी मैंने सिर्फ एक फोल्डर बनाया। ठीक है, मेरा फोल्डर ये है, वेबसाइट फोल्डर, और मैं स्क्रैच से बना रही हूँ, मैंने कुछ भी कोड कहीं लिखा नहीं है। आई एम ओपनिंग दिस इनटू VS कोड। मतलब ये एक एडिटर है, अगर नहीं है तो आप नोटपैड पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, notepad.html। ओके, index.html बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। तो ये देखो बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ नहीं है अभी। ये वेलकम पेज मैंने हटा दिया, VS कोड छोटा सा एडिटर है जिसमें आप अपना कोड लिख सकते हैं, और कुछ नहीं। अब मैं सिर्फ एक छोटा सा काम ये कर रही हूँ, मैंने एक index.html एक फाइल बना ली है, index.html डन। यहाँ कोडिंग करेंगे और यहाँ उसका इफेक्ट देखेंगे। ओके, चलो अब मैंने ओपन किया है मेरा चैट जीपीटी। मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी पे लिखा है, देखो मैं प्रॉम्प्ट क्या लिख रही हूँ, सी। चैट जीपीटी में सबसे जरूरी क्या होता है पता है? चैट जीपीटी एक टूल है, आपको उसको यूज करना आना चाहिए। मैंने लिखा जनरेट नैव बार। नैव बार क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का ऊपर वाला बार। क्रिएट नैव बार कोड यूजिंग टेलविंड CSS। अब मतलब
मैं कोडिंग नहीं करने वाली हूँ, आप देखना मैं कोड करूंगी ही नहीं कहीं पे भी, उसके बाद भी ये वेबसाइट बन जाएगा। डन। तो ये मुझे अभी कोड देने वाला है, ये आ गया मेरा कोड, ये पूरा नैव बार है, ठीक है। तो क्या मुझे सिर्फ नैव बार से काम चल जाएगा? नहीं, मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। जनरेट वेबसाइट कोड फॉर navbar using tailwind cdn। अब ये cdn क्या है? छोटा सा लिंक है, ठीक है। तो ये हो गया, ये काफी काफी बेटर है, काफी बेटर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम देखना हमारा कोड पहले एक बार जनरेट हो जाए, हम सिर्फ ऊपर यहाँ से कॉपी करेंगे बस। अब मैं अपने वेबसाइट इस पे गई और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैं ये फाइल एरिया नेविगेशन हटा रही हूँ एंड कंट्रोल सी कर रहे हैं, कंट्रोल एस कर रही हूँ। आई वांट टू जस्ट सेव इट। इसके बाद आई एम टेकिंग इट टू लाइव। अब आप देखो, ये देखो क्या कुछ किया मैंने? कुछ नहीं किया। इतने से मैं देखो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, इतना सा यहाँ लोगो बता दिया उसने, यहाँ पे मुझे कुछ टेक्स्ट दे दिया, ये मेरे नैव बार बना दिया बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। एक छोटी सी चीज, चलो भाई मुझे ना कुछ कलर्स चेंज करने हैं, मुझको ये ग्रे नैव बार ग्रे 800 नहीं चाहिए, मुझको ये चाहिए ब्लू। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या मैं इसको ब्लू कर सकती हूँ? देखना अभी, बस मुझे एक छोटी सी चीज आपको ये दिखानी है कि हाँ ये यहीं की यहीं पॉसिबल हो जाएगा। मैंने ब्लू कर दिया, मुझे मेरा नैव बार ब्लू चाहिए था, मैंने ब्लू कर दिया, डन, ठीक है। और कुछ कहीं पर है क्या जो हम कलर चेंज कर सकते हैं? ये 300 है, चलो इसको भी कलर चेंज करके देखते हैं। ये क्या चीज है? मैंने बोला इसको रेड, कंट्रोल एस, रेड, ठीक है। तो ये अंदर आपका जो डेटा, कंट्रोल जेड, ठीक है, कंट्रोल एस, रेड हो गया। अब एक छोटे ये कुछ नहीं हुआ, टॉगल बटन रेड हुआ है, ये देखो ये टॉगल बटन रेड हुआ है, ठीक है। अब एक छोटे से काम करते हैं, हमको ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, हमको लोगो का नाम चेंज करना है। हम लोगो चेंज कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं फ्यूचर स्किल एकेडमी का वेबसाइट बन रहा है, फ्यूचर स्किल्स एकेडमी, कंट्रोल एस। ये एज यू कैन सी, एज यू कैन सी हियर चेंज हो गया, फ्यूचर स्किल्स चेंज हो गया। अच्छा इतना बन गया। मुझे ये वेलकम टू आवर वेबसाइट नहीं चाहिए, मैं सिर्फ डिलीट कर रही हूँ बस। देखो मैंने सब आपके सामने काम किया अभी तक, ठीक है। अब देखना बहुत बढ़िया लॉजिक, मुझे चाहिए एक हीरो सेक्शन। ये तो इतना सा है ना, इतना सा थोड़ी कोई वेबसाइट होता है यार। अभी मुझे इसको नेक्स्ट हीरो सेक्शन चाहिए। चलो चलते हैं चैट जीपीटी पे और हम यहाँ पे लिखते हैं जनरेट कोड फॉर हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन विथ बीजी इमेज, बैकग्राउंड इमेज, ओके, यूजिंग टेलविंड। हर जगह मैंने टेलविंड क्यों लिखा है पता है? जैसे कि मुझे सीएसएस ना लिखनी पड़े, वो खुद ही लिख के दे दे, वो भी टेलविंड में लिख के दे दे, ठीक है भैया, डन। ओके, अब ये यहाँ पे जनरेट करने वाला है, तो चलते हैं इसको चेक करते हैं कहाँ पे जनरेट कर रहा है उसने। इतनी सारी चीजें मेरे स्क्रीन पे हो गई, मैं अभी चैट बॉक्स हटा रही हूँ यहाँ से, सो दैट आई कैन एटलीस्ट सी। ये मुझे बहुत दिक्कत कर रहा है, ठीक है। ये आ गया मेरा कोड यहाँ पे, ठीक है, ये रहा कोड जनरेट हो गया, ये देखो। बस मैं क्या करूंगी, अच्छा अब मैं इसको कॉपी नहीं कर सकती पूरा, हाँ, क्योंकि इसने फिर से HTML कर दिया। मेरे को तो सिर्फ इतनी सी चीज चाहिए, बस इतना सा चीज चाहिए, मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। नाउ आई एम गोइंग टू माई VS कोड और यहाँ पर जहां पर ये मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया, कंट्रोल एस किया और वेबसाइट पे वापस जाके देखो ये बन गया हीरो सेक्शन। लेकिन यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, एक इमेज लेकर आते हैं, फटाक से इमेज लाएंगे 1 सेकेंड में। नेचर इमेज ले आते हैं, कोई सी नेचर इमेजेस। तो मैंने जैसे ही नेचर इमेजेस पे क्लिक करा एंड इमेजेस, मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। चलो ये वाली इमेज ले लेते हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि डाउनलोड कर लेते हैं, ओके। सेव इमेज एज, किस में सेव करना है? हमारा डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर है, वो फोल्डर है हमारा वेबिनार नहीं था हमारा, शायद हमने वेबसाइट लिखा था, ओके, वेबसाइट ये, और हमने इसका नाम रख दिया एजुकेशन डॉट, ओके, डॉट तो वो ले लेगा, सेव। जैसे ही मैंने सेव किया, देखो मेरी इमेज कहाँ पर आ गई, ये आ गई, ये देखो ध्यान से। अब मैं इमेज लगाऊंगी edu, ठीक है, मुझे इमेज लगानी है। कहाँ पर है इसमें इमेज? अगर आप ध्यान से देखें, जेपीजी है वो, ये रहा, ये बैकग्राउंड यहाँ पर। बस कितना करा, यहाँ से लो सीधे डिलीट करो और 1 मिनट में आपको ये मिलने वाली है। edu कौन सी थी वो? डॉट जेपीजी थी ना, जेपीजी, कंट्रोल एस, कहाँ गया? ये रहा, देखो इमेज आ गया, ये बन गया। इतना सा काम। नीचे अगर कार्ड्स चाहिए आपको, फटाफट कार्ड्स जनरेट करो, टाइम थोड़ा कम है इसलिए आई एम गोइंग फास्ट।
तो ये आप इस तरीके से कार्ड जनरेट कर सकते हो नीचे। अगर आप अच्छा किसी को देखना है कि कार्ड जनरेट कैसे हो रहा है तो जस्ट राइट इन चैट यस, देन आई कैन एक्सीड द लिटिल टाइम एंड शो यू दैट आल्सो। यू वांट टू सी दैट? एनीवन? और अदरवाइज विल मूव। यस, ओके, डन, वेरी नाइस। सो लेट्स गो, एक छोटा सा कार्ड जनरेट करते हैं। देखना ये भी बहुत अच्छी चीज है, पूरा वेबसाइट ही बन जाएगा हमारा। जनरेट कार्ड सेक्शन, कार्ड गैलरी बोलना चाहिए इसको, कार्ड गैलरी, गैलरी विथ 3 कार्ड्स। ओके, एंड अच्छा एंड इमेज नहीं लगते, यूजिंग टेलविंड। अब देखो टेलविंड खत्म। अच्छा स्पेलिंग गलत लिख दो तो भी चैट जीपीटी बहुत स्मार्ट है, एटलीस्ट वो भाई कोई दिक्कत नहीं करता है, हमारा काम बहुत अच्छे से हो जाता है। ये देखो बन गया। तो अब हमें इसको कितना कॉपी करना है? ये कार्ड बन रहे हैं, कार्ड 1 2 3, हमें कितना कॉपी करना है? पूरा नहीं करना है, ऐसा नहीं, इतना आसान नहीं है। ओके, हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। देखो इन चीजों को यूज कौन कर सकता है? वो कर सकता है जिससे नॉलेज हो ऑलरेडी। जिससे नॉलेज नहीं है भाई वो तो नहीं कर पाएगा ना। एटलीस्ट काम आसान करना है पर काम तो पता होना चाहिए ना कि क्या करना है, इसलिए वो थोड़ी सी चीजें जो आपको सीखनी चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, कंट्रोल एस। अब देखो कहाँ गया हमारा वेबसाइट, देखें क्या हमारे पास कार्ड आ गए? तो फिर मेरे पास बहुत सारी स्क्रीन हो गई हैं, तो मैं चैट को डिसेबल कर रही हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए। ये देखिए मेरे पास कार्ड आ गए, कितने बढ़िया कार्ड्स आए। मुझे यहाँ पे एक इमेज चाहिए, ठीक है, एक छोटी सी इमेज ले रही हूँ मैं, 1 मिनट लगाऊंगी सिर्फ आपकी इमेज लेके और आपको वो कार्ड में रेडी कर दूंगी। देखो मुझे इमेज चाहिए, मुझे दिखाना है मेरे जावा। चलो मुझे जावा का कुछ दिखाना है, मुझे लगा ये वाली इमेज अच्छी है। ओके, सेव द इमेज। वो वहीं पे लेके जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जावा इमेज शो कर दो, सेव कर दिया उसने। उसने यहाँ पर गई मैं और मुझे इमेज मिल गई, वो इमेज मेरी जावा डॉट जेपीजी है। ओके, कहाँ लगानी है मुझे? फिर यहीं पे। किस वाले कार्ड में लगाऊं मैं? पहले वाले पे लगाना चाहिए यार, फर्स्ट वाले पे लगा लेते हैं। जावा डॉट जेपीजी, देखो जावा डॉट जेपीजी, जावा डॉट जेपीजी, डन। कंट्रोल एस, कहाँ गया वेबसाइट? जरा देखे तो बहुत खिचड़ी हो गई लेकिन ठीक है। ये देखो ये बन गया हमारा कार्ड। यार इतना आसान था, इतना। यहाँ पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन लिख लो अपने कोर्स की, उसी तरीके से यहाँ पे और इमेजेस ले लो, एक फूटर बना लो, खत्म। आप अपना पोर्टफोलियो बना लो ऐसे। आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट दिखा दो, नीचे फूटर बना लो, उसमें आप अपनी चीजें दिखा दो कि हाउ टू कॉन्टैक्ट यू। ये आपका नैप बार हो गया, यहाँ पे आप अपनी फोटोज इमेजेस लगा दो हाफ करके, दैट्स इट। इवन आप लिख के देखो चैट जीपीटी, हाउ टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट, कैन यू क्रिएट और जनरेट माय पोर्टफोलियो वेबसाइट, उसको कस्टमाइज कर सकते हो। बट ये कस्टमाइजेशन आपको सीखना पड़ेगा, दैट इज अ स्किल। ओके, आई होप आई एम क्लियर विथ ऑल दीज थिंग्स। तो आप में से कितने लोग एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर चीज को सीखना चाहते हैं आपको लगता है? और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है प्लीज फील फ्री, राइट एंड आस्क मी। Can you have the recording of the session? Dear, I'll give you a recording. I will teach you how to create this particular website. You have to come to my office. Is that possible? Where do you belong to? Arpita? You need to know the fee structure. We'll be sending you. Rachi, okay, then that will be online. Be connected with me, Arpita. Okay? Very nice. So I'm handing over this. Any other doubt? Any questions? Just anytime you people can call us. We are Future Skills Academy. As you have just seen, we are from Bhopal, but we conduct a lot of courses that is online. If you want, I can give you my number. Though हमारे already counseling team है जो आपको contact करेगी. Still, if you want, this is my number. Be in touch. Okay. Yeah, I have shared my number. Vaibhavi, you can call me anytime. You people can call me if you wish to. And for your knowledge, I'm going to simply tell you that what we do is these all the particular courses. These are government level QP aligned courses. इसका मतलब जानते हैं, इसकी मार्केट में वैल्यू है। आपको हम अपना सर्टिफिकेट नहीं देते, हम आपको नेस्कॉम का सर्टिफिकेट देते हैं, एनएसडीसी के लेवल पे क्यूपी अलाइन करके आपको सर्टिफिकेट देते हैं इसमें। तो आपका एक जॉब रोल के लिए हम आपको प्रिपेयर करते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो कोर्स है,
इसकी फीस है 12,000, दैट इज फॉर 3 to 4 months, बेसिकली 3 month, बट या ओके हम प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से कराते हैं तो 3 to 4 months। तो इसकी बाकी सारी डिटेल्स आपको हमारे काउंसलर्स देंगे। और अब मैं मैडम को हैंड ओवर कर रही हूँ। आपके पास मेरा नंबर है, यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो और भी लोगों को बता सकते हो इसके बारे में। और अगर एक अच्छा बैच बनता है आपका तो फर्दर जो भी हम आपको डिस्काउंट दे सके डेफिनेटली हम कोशिश करें। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, लवली मीटिंग ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा। ओके, एंड आई थिंक आई हैव नॉट वेस्टेड योर टाइम और आपको बहुत सारी चीजें मैंने एग्जैक्टली दी हैं। थैंक यू सो मच।